Hello everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. Till now we have learned about the additions, subtractions and multiplications of decimal numbers. Okay, so now we will see the multiplication of decimal number by a decimal number. अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है multiplication of decimal number with the normal natural numbers, okay, counting numbers. So now we will see how can we multiply if both the number are in decimal. Okay. So then we will learn several processes, especially two processes we will learn. So first we will see with some examples. For example, we are taking 0.4 multiply 0.2. Okay. So here two numbers we have. Both the numbers are in decimal. So how can we multiply the decimal number? What exactly this means? So this means if you reduce this into fractional number, this will be 4 by 10. Multiply, this will be 2 by 10, right? If you remove the decimal. Okay, now we know the multiplication of fractional number. So numerator will be multiplied with the numerator and denominator will be multiplied with the denominator. Okay, so it will be 4 to 8 divided by 100. So 8 divided by 100 means if you convert this into decimal, then before 2 digit decimal will be there. So 0.08. So this will be the आंसर. So what you observe is from the above, इससे आपको क्या पता चला कि हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं क्या कि this multiply this. So 4 multiply 2 is 8. We know 8, and as here also before 1 digit decimal, here also before 1 digit decimal. So in the product we will give before 2 digit decimal. 2 डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल देंगे. तो एक डिजिट तो 8 हो गया और एक डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0 दे देंगे और उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल देंगे और डेसिमल से पहले हम लोग 0 दे सकते हैं. तो दिस इज द सेम आंसर व्हिच वी गॉट हियर. ओके, तो यहाँ पे आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है. आप अगर इतना लंबा प्रोसेस से नहीं भी करना चाहते हो, डायरेक्टली जस्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू कैन गिव द डेसिमल बिफोर 2 डिजिट. यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मान लो कि एक नंबर जो है उसमें बिफोर 2 डिजिट डेसिमल है, दूसरा नंबर जो है उसमें बिफोर 1 डिजिट है. वो उस तरह का नंबर में कैसे करेंगे? ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. So another examples we are taking is 0.34 multiply 1.2. Okay, so here if you do directly, if you want to multiply just after ignoring the decimal, decimal भूल जाओ कि decimal है, तो अगर decimal है भूल जाते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं 34 है, यहाँ पे 12 है, तो हम लोग जो है नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 12 का और चेक करेंगे कितना होता है. ठीक है, so 4 2 are 8, 3 2 are 6, okay, 4 1 are 4, 4 3 1 are 3. So 0 here 8, 6 plus 10 0 4 408, right? So 408. So here first you will write 408. So this is the product of these two numbers. Now here we have before 1 digit decimal, here we have before 2 digit decimal. So total before decimal digit is 4. यहाँ पे before 3 digit decimal है या before 1 digit decimal है, तो टोटल जो है हम लोग before 4 digit जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें बिफोर टोटल 4, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, सो टोटल 3 डिजिट. तो जो भी हम लोग का प्रोडक्ट होगा उसके बिफोर 3 डिजिट आपको डेसिमल देना है. तो ये प्रोडक्ट हुआ तो 1 2 3 बिफोर 3 डिजिट मींस बिफोर दिस एंड बिफोर दिस यू कैन गिव 0. सो 0.408 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके, तो इसको आप लोग उस तरह से भी करके देख सकते हो, सेम आएगा, बट आपको उतना करने का जरूरत नहीं है बिकॉज़ दैट विल बिकम लॉन्ग प्रोसेस, वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज आपका सेम आएगा. अगर आप इसको करते हो तो ये आ जाएगा 34 by 100. ओके, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 12 by 10. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नॉर्मली हम लोग का हो जाएगा 34 multiply 12 डिवाइडेड बाय 100 multiply 10. तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 480 आएगा. 408 आएगा बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किया ही था. सो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 000. ओके, सो यहाँ पे इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओ, 30 के पहले डेसिमल देना है, सो ये हो जाएगा 0.408. तो यहाँ पे भी हम लोग का ये प्रोसेस से भी जो है आप देख सकते हो कि सेम आंसर आएगा. ठीक है, तो वेरी सिंपली आपको देखना है कि डेसिमल प्लेस बिफोर कितना नंबर से पहले है.
डेसिमल प्लेस 2 डिजिट से पहले है और यहाँ पे 1 डिजिट से पहले है, टोटल 3 डिजिट से पहले। जो प्रोडक्ट होगा उसका 3 डिजिट से पहले डेसिमल देंगे। यहाँ पे मान लो अगर और 1 डिजिट रहता और बिफोर 3 डिजिट से पहले डेसिमल रहता और यहाँ पे बिफोर 1 डिजिट, तो टोटल बिफोर 4 डिजिट से हो जाता। तो इस तरह से आपको दोनों का डेसिमल प्लेसेस देखना है और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है और जो भी प्रोडक्ट होगा उस पे लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर दोनों डेसिमल नंबर्स रहता है। So this is very easy because product is already given है। यस, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो वेरी इजीली आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नंबर्स है, देखो 2 2 3 4 2 2 3 4 मल्टीप्लाई 32 है, तो 3 2 है, तो ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे जो है 7 1 4 8 8, ओके। अगर हम लोग इसको डेसिमल को इग्नोर करें तो अब यहाँ पे बिफोर 1 डिजिट डेसिमल है, बिफोर 1 डिजिट है, तो कितना डिजिट से पहले डेसिमल देंगे? वेरी गुड, 2 डिजिट से पहले। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल दे देना है। आप लोग को अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है तो मल्टीप्लाई करके देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो यू नो नीड टू मल्टीप्लाई, हियर ओनली जस्ट यू हैव टू राइट द सेम थिंग एंड यू हैव टू कीप द डेसिमल प्लेस in exact places, okay. So actually this question is question number 2 of your exercise, okay. So now this one also the same. Now number will write first the number 7 1 4 8 8 and before 1 digit decimal, before 2 digits, so before total 3 digits, so before 3 digits means here the decimal will come. यहाँ पे राइट हैंड साइड से before 3 digit, 3 digit से पहले, यहाँ पे before 3 digit और 1 digit, so before 4 digit आपको देना है, तो 7 1 4 8 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 1 5 डिजिट, सो बिफोर 5 डिजिट मींस यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिफोर 5 डिजिट, ओके। यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 दे सकते हो, 0 डेसिमल का। यहाँ पे 1 2 3, सो बिफोर 2 डिजिट 3 डिजिट, ओके। सो 7 1 4 8 8, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले, टोटल 3 डिजिट से पहले यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 डिजिट से पहले, तो 4 डिजिट से पहले मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7.1488। तो इस तरह से आपको डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है और चेक करना है कि कितने होंगे और उसके हिसाब से लिखना है। मान लो यहाँ पे मेन करके अगर मेरा यहाँ पे एक डेसिमल है और इसमें यहाँ पे एक डेसिमल है, तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, टोटल 5 डेसिमल्स प्लेसेस से पहले देना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ की जगह पे यहाँ पे, तब हम लोग क्या करेंगे? तब तो हम लोग का यहाँ पे 4 डिजिट + 2 डिजिट 6 डिजिट हो गया, जो कि 6 डिजिट हम लोग यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे और एक 0 देके इसको 6 डिजिट बना देंगे और इससे पहले डेसिमल देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, 0 दे सकते हैं, तो 0 डेसिमल ये नंबर देगा। अगर मान लो इस पे और भी यहाँ पे 0 देके और एक डेसिमल दिया होगा इससे पहले, तब क्या करेंगे? यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 डिजिट 6 7 डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग को 7 डिजिट बनाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे और एक 0 देके इसको 7 डिजिट बना के उससे पहले हम लोग डेसिमल पुट करेंगे। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट अगर कोई पर्टिकुलर दिया हुआ हो और उसके हिसाब से आपको सिर्फ डेसिमल प्लेस करना है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, बस डेसिमल काउंट करके उससे आगे दे देना है। अगर वो पूरा डिजिट मैच नहीं करता है, पूरा डिजिट फिट नहीं करता है, तो आपको 0 देके उसको डिजिट को इंक्रीज करना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं और एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए और अच्छे से। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक है 2 डेसिमल 3 1 4 7 मल्टीप्लाई 1 डेसिमल 2 3, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? और 1 डेसिमल 2 3 ज्यादा हो जाएगा, 1 डेसिमल 2 ही लेते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा कितना हो जाएगा? 2 3 1 4 7 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 7 2 14 1 4 1 4 2 8 9 2 1 2 3 2 6 2 2 4, so 7 4
3 2. So 4 9 7 16 6 1 5 6 7 7 7 2. So यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 7 7 6 4. So 2 7 7 7 6 4. This is the result which we got. Now अभी हम लोग का क्या है 1 2 3 4 5. Before 5 डिजिट डेसिमल है तो कितना डिजिट से पहले लेंगे 1 2 3 4 यहाँ सही 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा. ठीक है. तो अब जो है मान लो इस पे हम लोग और भी डेसिमल प्लेसेस लगाते हैं. यहाँ पे नहीं डेसिमल देंगे यहाँ पे डेसिमल है. ठीक है. और यहाँ पे डेसिमल ना देंगे यहाँ पे है. तो हम लोग का प्रोडक्ट तो यही होगा. प्रोडक्ट सेम होगा जस्ट डेसिमल प्लेस चेंज होगा. तो डेसिमल प्लेस कितना होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2. सो 5 plus 2 is यहाँ पे 5 यहाँ पे 2. सो 5 plus 2 is 7. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम लोग का 60 डिजिट है यहाँ पे. तो हम लोग क्या करेंगे इसको 7 डिजिट बनाने के लिए और एक 0 दे देंगे. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. अब इससे पहले हम लोग डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद 0 उससे पहले 0 देंगे. तो 0 डेसिमल 0 2 7 7 7 6 4 करके आएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स. ओके. Now we will see the division of decimal number. Okay. So to find the division of decimal number, let's take an example. Okay. So the example is suppose 0 decimal 75 divided by 3. This is the division we want to do and division of decimal number. So here also is the same process. First we will see the basic concept. Basic concept, if we do using basic concept, then this will become 75 divided by 100. Okay. If you remove the decimal, then divided by 3 is here. Okay. Now if you convert this into multiplication, it will be as like we have done in fractional number. So reciprocal of 3 by 1 will be 1 by 3. Okay. So now it will be 75 by 300, right? So this will become 75 divided by 300. Okay. So this will cut 3 2 are 6, 3 5 are 15. Okay. So 25 by 100. So यहाँ पे हम लोग इसको 25 by 100 लिखते हैं. So it will cut. So 25 by 100. So this means 0.25. So the decimal division decimal of 75 by 3 will be 0.25. So this is the process of long process, and you can do with the help of the normal division also. So if you do using normal divisions, let's see how we can do. Okay, one process is this one. Another, suppose you want to divide 75 0.75 by 3. So first will be 0 only. So 0 decimal places will be decimal only. Okay. So now 7. So 3 2 are 6. 1 5 3 5 are 15. So here that means here our answer is coming 25. Okay. So 25. That is how 0.25. That is how the quotient is 0.25, and here also we found 0.25. So the process is same in case of multiplication also, in case of division also. Just we will keep the decimal in the place of decimal only, and you have to do the division as like the normal division only. Okay. So division is like this. Also you can do by yourself this type of division. If you are aware about the multiplication and division, I hope everyone are aware about multiplication and division. तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कोई भी दो नंबर्स का दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो इसको अगर फ्रैक्शनल में चेंज करके बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो. यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, और अगर इस तरह से करना चाहते हो तो कर सकते हो. ठीक है. दो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 6.7 में. क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Let's see these two questions. Okay. So first we will divide the numbers by including the decimal. Okay.
758 decimal 16. You can write the decimals also. Divide by 18. Okay. So now if you check the tables of 18, 18 how many times? 4 times set. So 4 8 are 32, 2, 3, 4 1 are 4, 5 6 7, 72, right? So this is why you need to know the tables. So 72 then 3, 38, okay. So 2 times 32, right? Sorry, 2 times how much? 30. So this is first we have taken 4 times. So here I am writing 4 times 18 are 72, then 2 times 18 are 36. Okay. Then 2. So now decimal will come. So 1. So now 18 1 are 18. So 18 1 are 18. 3 6. So 18 2 are 36, right? So this is how the quotient will be 42 decimal 12. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा quotient इज इक्वल टू 42 decimal 12. तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो therefore 758 decimal 16 divided by 18 is equal to 42 decimal 12. Okay, so this is how you can do that one also. So just you have to keep in mind one important thing, that is this one, this decimal one, because this is not totally divisible by that. I'm erasing this. You just write down, or you will do by yourself, I know. So let's do the next one. So 3 decimal to 3 divided by 5 we are doing. So as this is 3, this is not going by 5. So we will take 2 digits. So if you are taking 2 digits, that means you are taking decimal also. So just put the decimal. Okay. Now you will do. So 5 how many times? 5 6 are 30. So 2 23. So 23 now. 5 4 are 20. 5 4 are 20. So now 3. So now यहाँ पे एक और रूल्स आपको याद रखने हैं कि अगर रिमाइंडर रह जाता है तो आप यहाँ से आगे जितने भी जीरो का जरूरत पड़ेगा आप इधर आगे दे सकते हो, ठीक है? जितने जरूरत, जब तक भी रिमाइंडर इसका 0 हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे और आगे 0 0 ऐड करते जाएंगे. तो यहाँ पे अगर 0 आप दोगे तो यहाँ पे 0 एक आ जाएगा. सो 5 हाउ मेनी टाइम्स? 5 6 आर 30. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर इसमें नहीं जाता, इसमें भी अगर रिमाइंडर बचता तो हम लोग और भी 0 0 0 0 जितने जरूरत पड़ता उतने 0 हम लोग आगे देते जाते, ठीक है? तो इसका हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया? 4 6 4 6. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है जहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा. तो रिमाइंडर अगर बचता है आपको बचाना नहीं है, वहाँ पे 0 0 लेते हुए जाना है और जब तक नहीं उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, ठीक है? So these are the some examples from exercise 7.6. You can do the rest of all by yourself. If you find any doubts, you can ask in that. So that's all. Today we have learned about the multiplications of decimal number with the whole number and the multiplications of decimal number with the decimal number. Okay. So in the next video we will learn few more things about the multiplications of a decimal number, some more easy process. Okay. So till now you can do exercise 7.6 by yourself. So your homework will be exercise 7.6. So your homework is exercise 7.6. Okay. Thank you. Have a good time. Take care. Bye.